Hello, students. Today's topic of discussion is monoclonal antibody production. Okay, so the technique for monoclonal antibody production, it was very firstly devised by George Kohler and Caesar Milstein in 1975, for which they received the Nobel Prize. Okay, very first thing is, what is monoclonal antibody? So as I have told you that the B cells that produce antibody, they are specific to the antigen. Okay, one B cell will produce antibody specific to one antigen only. ठीक है. So what is monoclonal? What is monoclonal antibody? Antibodies which are specific to a single kind of antigen, and all those antibody, they are clone of each other. That is, all the antibodies, they are specific to a single kind of antigen. Okay, all the antibodies that are produced in that monoclonal antibodies, they are clones of each other and are specific to only one kind of antigen. Okay, so what is conventional method of antibody production, which we have already studied? Like B cells, they have membrane bound antibody in them, and when they interact with the specific antigen, the B cell, it gets activated and then it forms plasma cells. Okay, activated B cells only are known as plasma cells, and then these plasma cells, they secrete the antibodies into the body fluid. Okay, the antibodies that were bound to its membrane, they secrete those antibody into the body fluid. Okay, so all the B cells that are produced, all the antibodies that are produced from a single B cell, all of them will be clones of each other. That is, all of them will be specific to the same antigen. Okay, so as you can see here in this figure, here you can see this is an antigen. Okay, so these are the different epitopes of an antigen. This antigen, it has 4 epitopes. So we have studied that the antibody, it interacts with the epitopes. Okay, so 4 different kind of antibodies will be formed for this particular antigen. 4 different kind of antibodies will react with this antigen. Okay, since it has 4 different kind of epitopes. Fine. So yeah, so this antigen, when it is injected into the mice, okay, so if this antigen is injected into the mice, and what will happen in the mice? 4 different plasma cells will get activated. 4 different kind of B cells which have specific antibodies against these antigens will get activated. They will form plasma cells, and 4 different kind of antibodies will be secreted in the fluid of this mice. Okay, so the monoclonal antibody production, the technique for the monoclonal antibody production, the technique that is used, that it is known as hybridoma technology. Okay, so what is done in hybridoma technology, students? देखो, जैसे here, let's say for certain therapeutic or diagnostic applications, antibodies are needed against this antigen, antibodies are needed against this epitope 4 of this antigen. Okay, so what is done? This antigen, it is injected into the mice, and then spleen cells are isolated from spleen of the mice. So spleen, it is a secondary lymphoid organ, and I have told you what happens in secondary lymphoid organ. The interaction between antigen and antibody occurs in the secondary lymphoid organs. Okay, so the B cells, it interact with the antigen in the secondary lymphoid organs. Okay, so from spleen, these cells from spleen, the B cells from the spleen, they are isolated. Okay, so we will have 4 kind of B cells, activated B cells, that is plasma cells. Okay, so we will have 4 kind of plasma cells, each specific to one kind of epitope present in this antigen. इस antigen में 4 अलग टाइप के epitope हैं, तो हर टाइप के epitope के लिए one a type of plasma cell will be there, जो उसके लिए क्या होगा, specific होगा. Okay, as we can see here, देखो जैसे ये एपिटोप नंबर 1, इट इज़ रेड इन कलर, सो द प्लाज्मा सेल, द रेड वन, ये कलर से इन्होंने डिपिक्ट किया है दैट दिस इज द प्लाज्मा सेल विच इज स्पेसिफिक टू दिस एपिटोप. देन 2, here it is shown. Okay, so they here
when the B cells that were the plasma cells that were isolated from the spleen, it has 4 kind of plasma cells, okay, each specific to one kind of epitope present in the antigen that was injected in the mice, okay. Then in the hybridoma technology, what is done, students, the plasma cells that are isolated from the mice, they are hybridized with the myeloma cells. Okay, what are myeloma cells? Myeloma cells are cancerous cells. Okay, so these plasma cells, they are hybridized with cancerous B cells. Okay, why cancerous B cells? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ चाहिए, हमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ चाहिए विच आर क्लोन ऑफ वन अनदर, ओके. तो क्या होता है, माइलोमा सेल्स और कैंसरस सेल्स, यू नो, इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इनडेफिनिट ग्रोथ, है ना. वेयर एज प्लाज्मा सेल्स क्या होगा, प्लाज्मा सेल्स इन कल्चर दे विल डाई विद इन फ्यू डेज, ओके, बट माइलोमा सेल्स दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इनडेफिनिट ग्रोथ. तो अगर इन दोनों को हाइब्रिडाइज कर दिया जाए, सो द प्लाज्मा सेल्स दे विल ऑल्सो ग्रो इनडेफिनेटली. फाइन. So here these plasma cells and myeloma cells, they are hybridized, and here you can see in the third test tube, hybridomas are formed, okay, hybridoma of these plasma cells and these myeloma cells. Fine. Then these hybridomas, they are selected or separated according to the like one kind of plasma cells, one kind of hybrids of plasma cells and these myeloma cells, they are separated. ये ऐसे separate करके क्या होगा, जैसे हमने ये first culture लिया, इसमें only hybridomas of plasma cells which are specific to epitope 1 दे आर प्रेजेंट. तो इसमें क्या होगा, इसमें जितनी एंटीबॉडीज़ बनेंगी दे विल बी फॉर्म्ड अगेंस्ट ओनली द एपिटोप 1. सिमिलरली दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऑल द एंटीबॉडीज़ दैट विल बी फॉर्म्ड, दे विल बी फॉर्म्ड अगेंस्ट द एपिटोप 2, ओके. तो इसलिए दीज हाइब्रिडोमास, द क्लस्टर ऑफ हाइब्रिडोमास, दे आर सेलेक्टेड और सेपरेटेड. फाइन. सो हेयर यू कैन सी, जो हम देख रहे थे यहाँ देखो, जैसे 4 टाइप का एंटीबॉडीज़ दैट आर प्रेजेंट, ओके. व्हेन डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट इन द सीरम, दे आर नोन एज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, ओके. जब सिंगल टाइप की होती हैं, दे आर नोन एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ विच आई जस्ट टोल्ड यू. एंड हेयर हमारे पास 4 टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, एंटीबॉडी 1, 2, 3 एंड 4. सो दिस इज नोन एज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, ओके. वाई? क्योंकि इसमें क्लोन्स ऑफ poly type, poly is different, okay, more than one. So इसमें clones of more than one type of antibodies are present, that's why it is known as polyclonal antiserum or polyclonal antibodies. And in monoclonal antibodies में क्या होता है, clones of same type of antibodies are present. Fine. So here in this box you can see यही वाला antigen is shown here, and आप देख सकते हो कि antibody 1 it is specific to this epitope, antibody 4 specific to this epitope, okay, and antibody 3 is specific to this epitope, whereas antibody 2 it is specific to this epitope, okay. So how different kind of antibodies, they are reacting to different, reacting to different epitopes of the same antigen, it is shown in this panel, okay. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो हमने अभी बात की, क्या किया जाता है, व्हाट इज डन इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, प्लाज्मा सेल्स and myeloma cells, they are hybridized in order to form hybridomas. Why? Because by fusing with the myeloma cells, the plasma cells, it will acquire the property of indefinite growth, okay. अगर उसे monoclonal antibodies बनानी है, if the plasma cell it has to make many clones of its antibody, it has to make many clones of itself, तो उसे क्या चाहिए, indefinite growth का property चाहिए ना. अदरवाइज क्या होगा, plasma cell after dividing for a certain number of time, उसका growth या उसका life will be stopped culture medium में, okay. बट अगर वो माइलोमा सेल के साथ फ्यूज़ हो जाता है तो वो भी क्या करेगा, माइलोमा सेल की तरह इनडेफिनेट ग्रोथ करेगा, एंड बाय एक्वायरिंग दिस प्रॉपर्टी इट कैन जनरेट मैनी क्लोन्स ऑफ इटसेल्फ, ओके. सो स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ है,
कि व्हेन दीज टू काइंड ऑफ सेल्स दे विल बी फ्यूज्ड और हाइब्रिडाइज, तो क्या होगा, मतलब तो विल हैव, जब हमने जो कल्चर में जिसमें इन दोनों सेल्स का फ्यूजन या हाइब्रिडाइजेशन कराया जा रहा है, ओके, सो द फ्यूजन इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, जो दो सेल्स का फ्यूजन होता है इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। सो येस, जब जिस कल्चर में इन दोनों सेल्स का फ्यूजन कराया जा रहा है तो उसमें हमें 3 टाइप के सेल्स मिलेंगे। एक तो हमें क्या मिलेगा, अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स मिलेंगे, अनफ्यूज्ड बी सेल्स मिलेंगे, और एक हमें मिलेगा फ्यूज्ड सेल्स जो हमें चाहिए। ओके, एक तो हमारे जो हाइब्रिड सेल्स हैं हमें वो मिलेंगे, बाकी कुछ बी सेल्स ऐसे होंगे जो फ्यूज़ नहीं हुए होंगे माइलोमा सेल्स के साथ, और कुछ माइलोमा सेल्स भी ऐसे होंगे जो फ्यूज़ नहीं हुए होंगे बी सेल्स के साथ। ओके, सो अब हमें कल्चर में से सिर्फ अपने हाइब्रिड सेल्स सेलेक्ट करने हैं। सो व्हाट इज़ द मेथड, हम कैसे अपने सिर्फ हाइब्रिड सेल्स को आइसोलेट करेंगे उस मिक्सचर ऑफ कल्चर में से। ओके, सो दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ हैट मीडियम सिलेक्शन। अब क्या होगा, जो हमारा वो पूरा सेल्स का क्लस्टर है इट विल बी इंट्रोड्यूस टू हैट मीडियम। ओके, so what is hat medium? Hat medium में H stands for hypoxanthine, A stands for aminopterin and T stands for thymidine. Okay, so we have hat medium with us. अब क्या होता है ना, in order to select हमारा hybrid cells, you make use of the property of nucleotide synthesis of cells. हर सेल न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करता है। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस जो सेल करते हैं वो एंड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ सेल। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस नहीं होगा तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करते हैं सेल्स वो दो तरह से करते हैं, वन इज़ देयर डी नोवो पाथवे एंड द अदर वन इज सैल्वेज पाथवे। ओके, तो क्या होता है इनको अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, व्हाट आर डी नोवो एंड सैल्वेज पाथवे। सो जो हमारा ये हैट मीडियम है ना, हैट मीडियम में जो आई टोल्ड यू ए दैट स्टैंड्स फॉर अमाइनोप्टेरिन। तो जो हमारा अमाइनोप्टेरिन है ये क्या कहता है, जो डी नोवो पाथवे है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का ये उसे ब्लॉक कर देता है। ओके, बाय इंटरफेयरिंग विद द by interfering with the critical step of de novo pathway, it blocks the de novo pathway of nucleotide synthesis. अब जब de novo pathway block हो गया तो क्या करेगा, the cell it will move towards the salvage pathway of nucleotide synthesis. Okay, तो अब सेल्वेज पाथवे, जब न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का जो सेल्वेज पाथवे होता है उसके लिए सेल को 2 एंजाइम्स चाहिए होते हैं, वन इज HGPRT एंड द अदर वन इज TK. TK is thymidine kinase and HGPRT is hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase. ओके, तो सेल्स को 2 एंजाइम चाहिए सेल्वेज पाथवे के लिए, वन इज HGPRT एंड अदर वन इज थाइमिडीन काइनेज। नाउ व्हाट इज डन, जो हमारा बी सेल है या जो प्लाज्मा सेल है, जो 2 तरह के सेल फ्यूज़ कर रहे हैं, प्लाज्मा सेल और माइलोमा सेल। ओके, तो जो प्लाज्मा सेल है उसमें क्या करते हैं, जो थाइमिडीन काइनेज एंजाइम है, वन ऑफ द एंजाइम दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेल्वेज पाथवे, थाइमिडीन काइनेज जो एंजाइम है उसका क्या करते हैं, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस कर देते हैं, दैट इज़ कि म्यूटेशन से दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज इनएक्टिवेटेड। ठीक है, तो अब जो प्लाज्मा सेल है उसके बाद एक ही एंजाइम है दैट इज़ HGPRT एंड सिमिलरली जो माइलोमा सेल है, ओके, द अदर पार्ट दैट इज टू बी फ्यूज, जो दो माइलोमा सेल है उसे उसका क्या है, उसका HGPRT एंजाइम जो है, ओके, HGPRT एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दिया बाय साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो एक सेल में तो थाइमिडीन काइनेज को इनएक्टिवेट कर दिया और दूसरे सेल में HGPRT को इनएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक एंजाइम से तो सैल्वेज पाथवे होगा नहीं। ठीक है, तो जब ये दोनों सेल्स फ्यूज़ करेंगे, ओके, तो सेल्स कैसे फ्यूज़ करते हैं, पहले सेल्स का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट फ्यूज़ करता है एंड देन उसका न्यूक्लियस का कंटेंट फ्यूज़ करता है। फाइन, तो जब दोनों सेल्स फ्यूज़ करेंगे, जब दोनों सेल्स का न्यूक्लियस का कंटेंट फ्यूज़ करेगा तो क्या होगा, जो फ्यूज्ड सेल होगा, जो हाइब्रिड सेल होगा उसमें दोनों एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। HGPRT एंजाइम किससे प्रेजेंट होगा, जो प्लाज्मा सेल है उसमें HGPRT एंजाइम होगा, प्लाज्मा सेल का जो न्यूक्लियस मटेरियल है, और जो माइलोमा सेल का न्यूक्लियस मटेरियल है उसमें क्या होगा, थाइमिडीन काइनेज एंजाइम होगा। तो क्या है, जो components, all the 2 enzymes that are required for the salvage pathway to process, they will be present only in hybridoma cell. ठीक है,
तो क्या होगा, जो अनफ्यूज्ड सेल्स हैं, जो अनफ्यूज्ड बी सेल्स हैं या जो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स हैं, दे वोंट बी सर्वाइविंग इन हैट मीडियम. हैट मीडियम में क्या था, लेट अस रिवाइज वंस अगेन. अमाइनोप्टेरिन जो HAT का A है, A स्टैंड्स फॉर अमाइनोप्टेरिन. तो जो अमाइनोप्टेरिन है उसने पहले जो डी नोवो पाथवे है ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस उसे ब्लॉक कर दिया. फाइन. और what H and T stands for, that are hypoxanthine and tyrosine. Okay, sorry, thymidine. So these hypoxanthine and thymidine, they are the substrate for the salvage pathway. Okay, these substrates the cell required for salvage pathway, जिसमें ये दोनों एंजाइम HGPRT, it will act on hypoxanthine, and thymidine kinase, it will act on thymidine. Okay, तो पहले डिनोवो पाथवे तो हैट मीडियम में पहले ही इनएक्टिवेट हो गया. अब क्या होगा, जो फ्यूज्ड सेल्स हैं, हमने जो सेल्स डाले थे वो सेल्स को क्या किया है, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस से दोनों सेल्स का एक एक एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दिया, विच इज़ रिक्वायर्ड इन सैल्वेज पाथवे. ओके, तो क्या होगा, अब जो फ्यूज्ड सेल्स होंगे ओनली दे विल बी ग्रोइंग इन द हैट मीडियम. Okay, so that is how the selection of hybrid cells is done in HAT medium. Okay, so here, yeah, it is a normal diagram जिसमें दिखाया है. देखो, दिस इज़ अ नॉर्मल टी सेल, टी और बी सेल. नॉर्मली हम बी सेल्स का ही वो करते हैं. तो नॉर्मल बी सेल, तो नॉर्मल बी सेल का लाइफ, it dies after 7 to 10 days in culture. Okay, normal B cell, and this is a cancerous cell. Cancerous cell will grow indefinitely. Now here, with the help of polyethylene glycol, एक हेट्रोकैरियन बना. हेट्रोकैरियन मतलब इसमें अभी दोनों न्यूक्लियस आर सेपरेट. ओके, एंड देन फिर क्या होगा, जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसका भी फ्यूजन होगा, एंड वील गेट अ हाइब्रिडोमा सेल. ओके, नाउ दिस हाइब्रिडोमा सेल है जो इट विल, जैसे इसमें हम लिखा है बी सेल हाइब्रिडोमा. बी सेल हाइब्रिडोमा जो है इट विल हैव indefinite property of growth. Okay, indefinitely ये grow करेगा, and it will form many clones of its antibody. Okay, similarly अगर T cell hybridoma है, so it will form all the components that are produced from T cells. Okay, so yeah, moving forward, so monoclonal antibody production by hybridoma technology जो है ये इन्होंने किया है, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया वही स्टेप्स में ये एक्सप्लेन है. So let us try to understand each step of this hybridoma technology. Okay, so the first one is preparation of cells. What is preparation of cells में क्या किया जाता है, जो हमने अभी पढ़ा, that एक kind of cell को HGPRT नेगेटिव कर देंगे. Okay, and myeloma से HGPRT नेगेटिव कौन सा है, plasma cells are HGPRT negative, and the myeloma cells, they are TK negative, that is thymidine kinase negative. Okay, and one more thing, this here you can see it is written, yeah, IG positive, HGPRT negative, and TK positive. What is IG positive? IG is immunoglobulin. Okay, so the plasma cells, they will produce the immunoglobulin, that is antibody, whereas the myeloma cells, they will not produce the antibody, they are IG negative. Okay, so preparation of cells में क्या है, the B cells, they are modified as IG positive, HGPRT negative, and TK positive, and the myeloma cells, they are modified as IG negative, HGPRT positive, and TK negative. Okay, so in the second step, fusion of these B cells and myeloma cells is done with the help of polyethylene glycol. And again it will form three kind of cells: unfused B cells, unfused plasma cells, and hybrid cells, and one more that is known as hybrid cells. What are hybrid cells में क्या होता है ना, दोनों cells fuse कर जाते हैं, उनका cytoplasmic content fuse करता है, लेकिन उनका nuclear content fuse नहीं करता है. Okay, nuclear content क्या होगा, एक cell का nuclear content gets destructed और सिर्फ एक ही cell का, either plasma cell या myeloma cell, किसी एक ही cell का nuclear content उसमें present होगा. Okay, तो अगर एक ही cell का nuclear content होगा मतलब हमारे पास एक ही एक्टिव एंजाइम होगा सैल्वेज पाथवे का, एंड हाइब्रिड सेल्स, दे विल आल्सो डाई इन हैट मीडियम. ओके, देन द थर्ड स्टेप, दैट इज सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स, दैट इज डन इन हैट मीडियम. ओके, सो हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सी स्टूडेंट्स, दीज आर बी सेल्स which are HGPRT positive, and these are myeloma cells which are HGPRT negative. Then with the help of polyethylene glycol, fusion is done. So these are unfused myeloma cells,
एंड दीज आर अनफ्यूज्ड बी सेल्स है. अभी ये जूम्ड में दिख नहीं रहा है, आप देख लेना बाद में. एंड दीज आर द हेट्रोकैरियॉन्स जो बाद में हाइब्रिडोमा बन जाएंगे व्हेन इट्स कैरियन और न्यूक्लियस ऑल्सो गेट्स फ्यूज्ड. ओके, देन दीज हाइब्रिडोमास दे गो अंडर हैट सेलेक्शन, एंड हैट सेलेक्शन के बाद ओनली हाइब्रिड सेल्स विल सर्वाइव इन द कल्चर में जो हाइब्रिड सेल्स होंगे सिर्फ वही सर्वाइव करेंगे. ओके, and then these hybridomas which contain gene for HGPRT, IG positive and immortal growth, these are the hybridoma cells. Okay, and फिर उसका next step क्या है, that these hybrid cells they are कल्चरिंग ऑफ सेलेक्टेड हाइब्रिडोमा सेल्स. ओके, तो अब क्या है हमारे पास जो हाइब्रिडोमा है उसमें जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमने जो स्प्लीन सेल्स जो हमने माइस से लिए थे उसमें क्या था, एक से ज़्यादा तरह के प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट थे ना, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ प्लाज्मा सेल्स हमने उन्हें माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज़ कर दिया था. तो जब हमारा हाइब्रिडोमा सेल्स का जो हमारे पास सस्पेंशन है या कल्चर में जो भी हाइब्रिडोमा सेल्स हैं तो वो क्या है, वो अभी भी पॉलीक्लोनल हैं. ओके, तो फिर क्या किया जाएगा, कल्चरिंग ऑफ सेलेक्टेड कल्चर कैसे करते हैं इन हाइब्रिडोमा सेल्स का, कि ये जो सस्पेंशन है इसे बहुत डाइल्यूट किया जाता है, एंड देन दिस सस्पेंशन इसे क्या किया जाता है, अलग अलग एक माइक्रोटाइटल प्लेट होती है, इसमें छोटे छोटे वेल्स होते हैं. ओके, सो दिस सस्पेंशन फर्स्ट इट इज़ डाइल्यूटेड एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन दिस द वेल्स ऑफ द माइक्रोटाइटल प्लेट. ओके, तो डाइल्यूशन इतना कर देते हैं कि एक वेल में सिर्फ एक ही सेल आता है, ओनली वन हाइब्रिडोमा सेल विल बी प्रेजेंट इन वन वेल जब उसे माइक्रोटाइटल प्लेट में प्लेस्ड करेंगे. ओके, तो अगर एक वेल में सिर्फ एक ही हाइब्रिडोमा सेल प्रेजेंट है तो उसके बाद व्हेन दिस हाइब्रिडोमा सेल विल डिवाइड, तो एक वेल में क्या प्रेजेंट होगा, ऑल द बी प्लाज्मा सेल्स और या ऑल द हाइब्रिडोमा सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर वेल विल बी क्लोन्स ऑफ ईच अदर, एंड व्हेन दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, तो वो जो एंटीबॉडीज होंगी वो क्या होंगी, सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होंगी. ओके, नाउ स्क्रीनिंग सेल्स फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन. तो जब इन्हें सेपरेट कर दिया सारा, एक तरह का हाइब्रिडोमा एक वेल में डाल दिया, देन दीज सेल्स दे आर स्क्रीन फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, दैट वेदर एंटीबॉडी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड और नॉट. ठीक है, तो वो किससे करेंगे, दे आर टू मेथड्स, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे और RIA दैट इज रेडियो इम्यूनो एसे. ओके, सो इसकी हेल्प से क्या होगा, दीज द सस्पेंशन जो हमारे पास जो प्रेजेंट है, जो भी कल्चर मीडियम जो प्रेजेंट है जिसमें हमने अपने हाइब्रिडोमास को सेपरेट किया है, तो उसमें एंटीजन रिएक्ट करेंगे. तो इफ़ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन अगर उसमें होता है दैट मीन्स उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है. ओके, सो द सेल्स दे आर स्क्रीन्ड फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, दैट वेदर दो सेल्स दे आर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी और नॉट, और वो किन दो मेथड से करते हैं, एलाइजा और RIA. ओके, देन प्रोपोगेशन ऑफ स्क्रीन्ड क्लोन्स इज डन. अब जो हमारे पास क्लोन्स आ गए हैं उनका क्या है, प्रोपोगेशन. तो प्रोपोगेशन दो तरह से होगा, आइदर कल्चर मीडियम में होगा, सो प्रोपोगेशन दो तरह से होगा, आइदर कल्चर मीडियम में होगा. तो अगर हमें पता चल गया कि जो भी हमारे हाइब्रिडोमास हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर वेल का जो भी जितना सस्पेंशन एक वेल में है उसे एक कल्चर बॉटल में डाल देंगे. ओके, सो देन नाउ ऑल द एंटीबॉडीज दैट विल प्रोड्यूस इन दिस कल्चर दे विल बी ऑफ सेम काइंड और दे विल बी मोनोक्लोनल. ओके, तो आइदर इन कल्चर मीडियम और इन वाइवो इनसाइड द माइस. ओके, या इन विट्रो होगा या इन वाइवो, उसका क्या करेंगे, प्रोपोगेशन ऑफ दोज हाइब्रिडोमा सेल्स इज डन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. ओके, एंड then isolation of antibodies. So then जब पूरी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विल बी फॉर्म्ड आइदर इन विट्रो जो कल्चर में हम कर रहे हैं या इन वाइवो इज इनसाइड द ऑर्गेनिज्म. ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जो भी हम इन विट्रो या इन वाइवो जिस भी मेथड से प्रोपोगेशन ऑफ दोज सेल्स इज बीइंग डन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तो उसके बाद दोज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे विल बी आइसोलेटेड फॉर फर्दर यूज्ड इन सर्टेन डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस. और वो सारे एप्लीकेशंस इसमें मेंशन है स्टूडेंट्स, आई हैव सेंट यू द नोट्स, तो उसके लिए आप इस नोट्स को रेफर करना. ओके, सो दैट इज़ इट फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन. ओके, तो अगर आप लोग को कुछ डाउट्स है इसके बारे में, सो यू कैन आस्क मी, मतलब हमारा जो ग्रुप है उसी में यू गाइस कैन टेक्स्ट. ओके, थैंक यू.